Assalamu alaikum, everybody. My name is Dr. Mawez Aslam, and I'm a postgraduate resident at Benazir Bhutto Hospital. I welcome you all to the seventh free webinar session of this week. I am the mentor for ENT for FCPS Part 1 exam courses for StudyMate and MedExam Expert. So today we will be learning about esophagus. ये esophagus जो है एक बहुत important topic है from the CPSP point of view. So what is basically the embryology of esophagus? First, we will be discussing about the embryology of the esophagus. Then we will be moving on to the applied anatomy of the esophagus. Then we will be looking at some pathology and the lymphatic and the venous drainages of the esophagus. And also we will be seeing the histology of the esophagus. So esophagus is a part of the foregut. आप सबको पता है कि गट के तीन पार्ट्स होते हैं, फोरगट, मिड गट और हाइंड गट. तो जो फोरगट होता है इट बिगिंस एट द लेवल ऑफ द एसोफेगस एंड इट एंड्स एट द अपर पार्ट ऑफ द डुodenum. So esophagus is a part of the foregut. अब अगर आप यहाँ पे देखें जो फर्स्ट सर्कल है, दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी. There is the trachea and there is the esophagus along it. Trachea का अपना रास्ता होता है और esophagus का अपना रास्ता होता है. Trachea is also called the windpipe, जबकि esophagus को food pipe भी कहा जाता है. जबकि अगर esophageal atresia हो जाए या stenosis हो जाए तो उसको हम कहते हैं pure esophageal atresia. ये तीन एबनॉर्मेलिटीज हैं जो एम्ब्रियोलॉजिकली जो कंजेनिटली पाई जाती हैं. ठीक है. द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मेलिटी इज द एसोफेजियल एट्रेजिया विद डिस्टल ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला व्हिच इज यू कैन सी इन दिस बिग सर्कल. ठीक है. इसमें अगर आप देखें ट्रेकिया है यहाँ पे, इसोफेगस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो एट्रेटिक है और जो डिस्टल पार्ट है वो ट्रेकिया के साथ फ्यूज हो रहा है. There is a fistula between the distal part of the esophagus and the trachea. This is the most common abnormality. Other are the pure esophageal atresia and the pure tracheoesophageal fistula. Pure esophageal atresia में आप देख सकते हैं there is only the stenosis in the proximal part. There is no tracheoesophageal fistula here. Whereas in pure tracheoesophageal fistula, you can see that it is also called the H type of the abnormality. There is a fistula between the trachea and the esophagus. Whereas the most common is the esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula. इसमें ऊपर वाले पार्ट में proximal पार्ट में esophageal atresia है, जबकि जो distal पार्ट होता है that forms a fistula with the trachea. Then we will be looking at the applied anatomy of the esophagus according to the diagram. So esophagus is basically a fibromuscular tube. इसकी total length होती है 25 centimeter. It begins at the lower end of the pharynx and it ends at the cardiac end of the stomach. So esophagus is also known as the food pipe. तो ये शुरू होता है लोअर एंड ऑफ द फेरिंक्स से और ये एंड होता है स्टमक के कार्डिक एंड पे. Pharynx is at the level of the C6, whereas the cardiac end of the stomach is at the level of T11. यहाँ पे एक चीज आप इंपॉर्टेंट देखें कि जो esophageal hiatus होता है that is at the level of T10, whereas the esophagus ends at the level of T11. तो जो क्रॉसिंग होती है डायफ्राम की वो T10 के लेवल पे होती है, जबकि जो esophagus एंड होता है वो एंड होता है एट द लेवल ऑफ T11.
ये जो डिस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ द इंसाइजर्स। ये जो टीथ हो रहे हैं अपर इंसाइजर्स, यहाँ से डिस्टेंस मेजर शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 सेंटीमीटर आता है C6, फिर T4 T5 आते हैं एट द लेवल ऑफ 25 सेंटीमीटर और T10 आता है एट द लेवल ऑफ 40 सेंटीमीटर। Then we have the esophageal constrictions. It is important to know the location of the esophageal constrictions, क्योंकि जब भी हम इसोफेगोस्कोपी कर रहे होते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे इसोफेगस में कंस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि वी टेक मोर कॉशंस, सो वी रिड्यूस द चांसेस ऑफ द डैमेज टू द इसोफेगस। एंड द फॉरेन बॉडीज जो होती हैं वो भी जो इसोफेगस की होती हैं वो भी इन्हीं कंस्ट्रिक्शंस के ऊपर आके स्टक होती हैं। So we basically have three main constrictions. First is at the level of C6, second is at the level of T4, and the third is at the level of T10. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वी स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द अपर इंसाइजर्स। C6 के लेवल पे होता है 15 सेंटीमीटर, T4 तक होता है 25 सेंटीमीटर एंड T10 तक होता है 40 सेंटीमीटर। C6 जो होता है ये होता है फ्रिंगो एसोफेजियल जंक्शन, ठीक है, विच इज एट द लेवल ऑफ 15 सेंटीमीटर, जहाँ पे फेरिंक्स और इसोफेगस आपस में ज्वाइन करते हैं, फेरिंगो एसोफेजियल जंक्शन, वहां पे होते हैं फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन। सेकंड कंस्ट्रिक्शन होती है एट द लेवल ऑफ T4, जहाँ पे, और T5। T4 के लेवल पे आर्च ऑफ एओर्टा क्रॉस करता है, whereas at the level of T5 the left main bronchus crosses। ठीक है, ये होती है अप्रोक्सीमेटली एट द लेवल ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपर इंसाइजर्स। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि T4 के लेवल पे आर्च ऑफ एओर्टा क्रॉस कर रहा होता है, जबकि T5 के लेवल पे लेफ्ट मेन ब्रोंकस क्रॉस कर रहा होता है। ये दोनों मिलके सेकंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ द इसोफेगस फॉर्म करते हैं। और जो थर्ड कंस्ट्रिक्शन होती है इसोफेगस की वो होती है एट द लेवल ऑफ T10। T10 वो लेवल होता है जहां पे इसोफेगस थ्रू द राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम क्रॉस करता है फ्रॉम द thoracic cavity एंड इट एंटर्स इनटू द abdominal cavity। ठीक है, T10 के लेवल पे थर्ड कंस्ट्रिक्शन होती है इसोफेगस की। और इसोफेगस एंड कौन से लेवल पे करता है? T10 पे करता है एंड यहाँ पे T11 पे एंड करता है। So can anybody type in the chat box? हाँ, तो इसोफेगस एंड होता है एट द लेवल ऑफ T11। ठीक है, इसको अगर हम आप जल्दी से रिवाइज कर लें, we have three main constrictions of the esophagus at the level of C6, T4 and the T10। C6 is at the level of 15 centimeter from upper incisors, जो होता है pharyngoesophageal junction। T4 is at the level of 25 centimeter from the upper incisors, जहाँ पे लेफ्ट आर्च ऑफ एओर्टा क्रॉस कर रहा होता है और लेफ्ट में ब्रोंकस क्रॉस कर रहा होता है। और T10 होती है थर्ड कंस्ट्रिक्शन which is at the level of 40 centimeter and esophagus ends at the level of T11। So this is a small mnemonic which can help you remember कि C6 plus T4 is equal to T10। ठीक है, C6 plus T4 is equal to T10, whereas 15 centimeter
plus 25 centimeter is equal to 40 centimeter. 15 centimeter plus 25 centimeter is equal to 40 centimeter. Then we'll be looking at the wall of the esophagus. So wall of the esophagus basically consists of 4 layers. ठीक है, इसकी 4 मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं. अगर हम विद इन आउटवर्ड शुरू करें तो सबसे पहले हमारे पास होती है म्यूकोजल लेयर, उसके बाद होती है सब म्यूकोजल लेयर, देन द थर्ड लेयर इज द मस्कुलरिस लेयर. Muscularis layer is further divided into the inner circular layer and the outer longitudinal layer. And the fourth layer is the adventitia or the fibrous layer. जो म्यूकोजा होता है esophagus का, it is lined by the stratified squamous epithelium, whereas the second layer is the submucosal layer. सबम्यूकोजल लेयर का फंक्शन क्या होता है? सबम्यूकोजल लेयर कनेक्ट्स द म्यूकोजल लेयर टू द मस्कुलर लेयर. और जो मस्कुलर लेयर होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट हैज 2 पार्ट्स, द इनर सर्कुलर लेयर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर. जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, दे आर थिकन्ड एट द लोअर एंड एंड दे फॉर्म अ कार्डिक स्फिंक्टर. ये हम आगे फर्दर डिटेल में मस्कुलर लेयर को डिस्कस करेंगे. And the fourth layer is the fibrous layer, which forms the loose covering of the esophagus. So coming over to the muscular layer, as I've already told you that there are 2 parts of the muscular layer. It has the inner circular layer and the outer longitudinal layer. ठीक है, जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, दे आर थिकन्ड एट द लोअर एंड एंड दे फॉर्म द कार्डियक स्फिंक्टर. और इसी तरह अपर एंड पे भी एक स्फिंक्टर होता है जो होता है क्रिकोफरेंजियस. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, ये है मस्कुलर लेयर. ठीक है, मस्कुलर लेयर के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं. जो अपर थर्ड होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्राइटेड मसल, और जो लोअर थर्ड होता है, ये बनता है स्मूथ मसल से. जबकि जो मिडल थर्ड होता है, ये होता है मिक्स्ड होता है, स्ट्राइटेड मसल्स भी होते हैं और स्मूथ मसल्स भी होते हैं. जो सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, ये अपर और लोअर एंड पे 2 स्फिंक्टर्स बनाते हैं. अपर एंड पे होता है अपर स्फिंक्टर, जबकि लोअर एंड पे होता है लोअर स्फिंक्टर. जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, इसको हम कहते हैं क्रिकोफरेंजियस. यहाँ पे जो होता है, दिस इज द नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ द इसोफेगस. ठीक है, और यहीं पे मोस्ट कॉमनली इसोफेगस की फॉरेन बॉडी स्टक होती है. जबकि जो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर होता है, ये वहां पे होता है जहां पे इसोफेगस ज्वाइन कर रहा होता है स्टमक में. ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होगा? दिस प्रिवेंट्स द इसोफेजियल रिफ्लक्स. अब अगर हम इस स्लाइड को जल्दी से रिवाइज कर लें, सो वी बेसिकली हैव 2 पार्ट्स ऑफ द मस्कुलर लेयर, द इनर सर्कुलर एंड द आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर. Circular fibers are thickened to form 2 sphincters, upper sphincter, which is also called the cricopharyngeus, and the lower sphincter at the junction of the esophagus with the stomach. Cricopharyngeus is the narrowest point of the esophagus. और जो होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, उसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द इसोफेजियल रिफ्लक्स. The esophagus is divided into 3 parts. Upper 1/3 is formed only by the striated muscle. Lower 1/3 is formed only by the smooth muscle. And the middle 1/3 is formed by a mixture of the smooth and striated muscles.
देन वी हैव द हिस्टोलॉजी ऑफ द इसोफेगस। तो सीपीएसपी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि म्यूकोजा इज लाइंड बाय द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब अगर आप इस स्लाइड में भी देखें, यहाँ पे स्क्वैमस सेल्स हैं, ठीक है, विच आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। और इसके टॉप पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई केराटिन नजर नहीं आ रहा। तो इसोफेगस is lined by what type of epithelium? It is lined by non-keratinized stratified squamous type of epithelium. Then coming over to the nerve supply of the esophagus. Esophagus has basically two types of nerve supplies, the parasympathetic supply and the sympathetic supply. Parasympathetic supply is by the vagus nerve, whereas the sympathetic supply is by the sympathetic trunk. अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द इसोफेगस। तो इसोफेगस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर वन सर्वाइकल पार्ट, नंबर टू थोरेसिक पार्ट, नंबर थ्री एब्डोमिनल पार्ट। जो सर्वाइकल पार्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो जाती है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। जो थोरेसिक पार्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो जाती है पोस्टीरियर मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड्स में। जबकि जो एब्डोमिनल पार्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो जाती है गैस्ट्रिक या फिर सीलियक लिम्फ नोड्स में। ठीक है, सो वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ द esophagus: cervical part, thoracic part and the abdominal part. सर्वाइकल पार्ट ड्रेन होता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, थोरेसिक पार्ट ड्रेन होता है पोस्टीरियर मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड्स में, और जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वो ड्रेन होता है इनटू द गैस्ट्रिक, जिनको हम सीलियक लिम्फ नोड्स भी कहते हैं। देन वी हैव द आर्टीरियल सप्लाई। इसको भी उसी तरह हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसोफेगस को, अपर वन थर्ड, मिडल वन थर्ड और लोअर वन थर्ड में। जो अपर वन थर्ड होता है इट इज सप्लाइड बाय द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, उसकी इसोफेजियल ब्रांचेस होती हैं इंफीरियर थायराइड आर्टरी की, तो सप्लाई करते हैं अपर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस को। मिडल वन थर्ड इज सप्लाइड बाय द थोरेसिक aorta। ठीक है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं जो मिडल वन थर्ड को सप्लाई कर रही होती हैं। जबकि जो लोअर वन थर्ड होता है इट इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब अगर आप एनाटॉमी को रिकॉल करें तो जो स्टमक का लेसर कर्वेचर होता है उसको सप्लाई कर रही होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, इसी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं जो सप्लाई करती हैं लोअर वन थर्ड ऑफ द इसोफेगस को। अगर आप इसको जल्दी से रिवाइज करें, सो अपर वन थर्ड ऑफ इसोफेगस इज सप्लाइड बाय द esophageal branches from the inferior thyroid artery. Middle one third is supplied by the branches from the thoracic aorta. And the lower one third is supplied by the esophageal branches of the left gastric artery. अब अगर आपको आर्टीरियल सप्लाई अच्छी याद होगी है तो वीनस ड्रेनेज उसकी काफ़ी आसान है। वीनस ड्रेनेज को भी हम इसोफेगस को उसी तरह तीन में डिवाइड करते हैं, अपर वन थर्ड में, मिडल वन थर्ड में और लोअर वन थर्ड में। तो जो अपर वन थर्ड की आर्टीरियल सप्लाई थी, कैन एनीबॉडी टेल मी वो क्या थी? यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। यस, अपर वन थर्ड की थी इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो जो अपर वन थर्ड की वीनस ड्रेनेज होती है वो होती है इनटू द इंफीरियर थायराइड वेन। Lower one third of the esophagus was supplied by which artery?
Yes, it was supplied by the left gastric artery. So similarly, the venous drainage of the lower one third of esophagus is from to the left gastric vein. ठीक है, अपर वन थर्ड was supplied by the inferior thyroid artery और इसकी venous drainage होगी inferior thyroid vein में. Lower one third was supplied by the left gastric vein और इसकी भी venous drainage होगी lower one third was supplied by the left gastric artery और ये drain होगा into the left gastric vein. इसमें अब आपको जो याद रखने वाला वो होती है सिर्फ मिडल वन थर्ड को. Middle one third of esophagus is drained into the azygous vein. ठीक है, we have two veins है, the hemiazygous and the azygous vein. और जो azygous vein होती है ये ड्रेन करता है middle one third of the esophagus को. ठीक है, इसमें आप एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है ये ड्रेन कर रही होती है लोअर वन थर्ड ऑफ द इसोफेगस को. ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन का दूसरा नाम होता है कोरोनरी वेन. ठीक है, कोरोनरी वेन एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ये दोनों एक ही वेन के मुख्तलिफ नाम हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है कार्डियक स्फिंक्टर, उसी तरह यहाँ पे एक कोरोनरी वेन भी है. ठीक है, कोरोनरी वेन और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन बोथ मीन द सेम थिंग. अच्छा, अब नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये जो स्टार है ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? You can write it in the chat box. अच्छा, this star is showing the portosystemic anastomosis. ठीक है, यहाँ पे इसोफेजियल वेरिसेस होती हैं. ठीक है, ये वो जगह होती है जहाँ पे पोर्टल वेन्स और सिस्टेमिक वेन्स आपस में एनास्टोमोस करती हैं. ठीक है, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है दिस इज पार्ट ऑफ द पोर्टल वीनस सिस्टम, जबकि एजाइगस वेन दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टेमिक वीनस सिस्टम. तो इस रीजन में जहाँ पे स्टार है यहाँ पे सिस्टेमिक वीनस सिस्टम की एजाइगस वेन और पोर्टल वीनस सिस्टम की लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आपस में एनास्टोमोस करती हैं और यहाँ पे पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस फॉर्म होते हैं. एंड व्हेनेवर देयर इज अ पोर्टल हाइपरटेंशन, जब इसका इन वीनस सिस्टम्स में हाइपरटेंशन होगी तो यहाँ पे इसोफेजियल वेरिसेस होती हैं जो कि बाद में ब्लीड करती हैं और मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं. Then moving over to the pathology of the esophagus, the first and the most important pathology we have is the Plummer-Vinson syndrome. Plummer-Vinson syndrome has a triad of signs and symptoms. ठीक है, इसमें 3 साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. नंबर 1, जो पेशेंट होता है आपके पास प्रेजेंट करता है कि मेरे से खाना निगलने नहीं होता, विच इज़ द डिस्फेजिया. फिर उसके बाद जब आप उसके कुछ ब्लड सीपी करवाते हैं तो उसमें आपको एनीमिया मिलेगा. जब उसके आप एमसीवी एमसीएचसी चेक करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. और जब फिर आप उसके बेरियम स्वॉलो करवाएंगे या पे इसोफेगोस्कोपी करेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे इसोफेजियल वेब्स. तो ये 3 साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं प्लम्बर-विंसन सिंड्रोम के. इसके साथ फोर्थ जो आ सकता है साइन आ सकता है वो होता है ग्लोसाइटिस का. ग्लोसाइटिस मींस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग. ठीक है, so this Plummer-Vinson syndrome can lead to an increased risk of esophageal squamous cell carcinoma. ठीक है, this is of somewhat importance कि Plummer-Vinson syndrome can lead to increased risk of esophageal squamous cell carcinoma. अगर हम इसको जल्दी से रिवाइज करें, Plummer-Vinson syndrome is a triad of dysphagia, iron deficiency anemia, and esophageal webs. This can also be associated with glossitis, and it leads to increased risk of esophageal squamous cell carcinoma.
This is a small mnemonic from the first aid. Plumbers die. D stands for dysphagia, I stands for iron deficiency anemia, and E stands for the esophageal webs. Next we have the achalasia. Chalasia का मतलब होता है टू रिलैक्स, और जब भी किसी चीज के साथ ए ऐड अप हो जाए दैट मीन्स द फेलियर टू रिलैक्स. So chalasia means to relax, whereas achalasia means failure to relax. This is a pathology of the lower esophageal sphincter. When the lower esophageal sphincter fails to relax due to loss of the myenteric, which is also called the Orbeck's plexus. This is due to the loss of the postganglionic inhibitory neurons. ठीक है, जिनमें एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और VIP होता है, वेजोएक्टिव इनहिबिटरी पेप्टाइड. जो एक कलेजिया का पेशेंट होगा ये आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा? विल प्रेजेंट विद अ प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. कि वो प्रेजेंट करेगा कि उसको पहले सॉलिड्स निकलने में भी इशू हो रहा है और उसके बाद उसको लिक्विड्स इनटेक में भी इशू हो रहा है. लेकिन उसको पहले सॉलिड्स को इशू होगा और उसके बाद उसको लिक्विड्स को भी होगा. वेरेज जो कैंसर के पेशेंट्स होंगे जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिनमें किसी किस्म का मैस इफेक्ट होगा या कोई लीजन होगा, उनको यूजुअली डिस्फेजिया इज ओनली टू द सॉलिड्स. ठीक है, जो एक्लेजिया के पेशेंट होगा ही विल प्रेजेंट इनिशियली विद डिस्फेजिया टू लिक्विड्स. ठीक है, वो फिर बाद में प्रोग्रेस करेगा एंड ही विल आल्सो प्रेजेंट टू यू विद डिस्फेजिया टू सॉलिड्स. जबकि जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिनमें मैस इफेक्ट होगा, कोई कैंसर का पेशेंट होगा, उसमें डिस्फेजिया विल बी मोर टू दी सॉलिड्स इनिशियली. ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो ये है बर्ड बीक. बर्ड बीक अगर आप देखें प्रॉक्सिमली थोड़ी वाइड होती है और डिस्टल एंड पे आके ये नैरो हो जाती है. तो इसी तरह एक्लेजिया में भी आपको नजर आती है बर्ड बीक अपीयरेंस. जब हम इन पेशेंट्स का बेरियम स्वॉलो करवाते हैं, इसमें हमारे पास आता है डायलेटेड इसोफेगस विद एन एरिया ऑफ डिस्टल स्टेनोसिस. ये जो डिस्टल है ये कार्डियक स्फिंक्टर है. ठीक है, जब ये रिलैक्स नहीं होता तो यहाँ पे कूलिंग ऑफ फूड शुरू हो जाती है. ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे फूड कूल अप होता रहता है और इसोफेगस डायलेट हो जाता है. जब इसका हम पे बेरियम स्वेलो करवाते हैं तो इसमें हमें एक बर्ड बीक अपीयरेंस मिलती है. This pathology is associated with an increased risk of esophageal cancer. इसमें अगर आप नोट करें, हमने एडिनो कैंसर कार्सिनोमा या स्क्वेमस कार्सिनोमा नहीं कहा. ठीक है, वी हैव only written it is associated with increased risk of esophageal carcinoma, which include both the adenocarcinoma and the squamous carcinoma. Then we have the Barrett's esophagus. Barrett's esophagus is a specialized intestinal metaplasia. Can anybody tell me what is metaplasia? Metaplasia is a change in form. It is transformation from one differentiated cell type to another differentiated cell type. ठीक है, मेटाप्लेजिया कैंसर नहीं होता. कैंसर में जो सेल टाइप्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, वो एटिपिकल टाइप के होते हैं. जबकि जो मेटाप्लेजिया में सेल टाइप्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड टाइप के होते हैं. तो Barrett esophagus involves the distal part of the esophagus. It is due to the chronic gastroesophageal reflux disease. इसको हम कॉमनली कहते हैं GERD. ठीक है, जब बार बार स्टमक से रिफ्लक्स होगा इसोफेगस में ऑफ एसिडिक फ्लूइड, उसकी वजह से जो इसोफेगस की लाइनिंग होती है ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है. नॉर्मली यहाँ पे होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द
नॉन सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो इसोफेजियल लाइनिंग होती है, इट कन्वर्ट्स इनटू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होता है नॉन सिलिएटेड कलमनर epithelium with goblet cells. And over the long period of time this leads to increased risk of esophageal adenocarcinoma. इसको अगर आप जल्दी से रिवाइज करें तो बैरेट्स एसोफेगस क्या होता है? इट इज अ डिजीज ऑफ द डिस्टल एसोफेगस ड्यू टू द क्रॉनिक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ठीक है, इसमें जो नॉर्मल एपिथेलियम होती है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू नॉन सिलिएटेड कलमनर विद गॉबलेट सेल्स, और इसकी वजह से देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इसोफेजियल एडेनोकार्सिनोमा। Then this is the last slide of today's topic, which is esophageal cancer. ये वाला टेबल मैंने लिया है फर्स्ट एड से। ठीक है, esophageal cancer typically presents with progressive dysphagia, first to the solids and then to the liquids. जो भी पेशेंट होगा जिसको खाना निगलने में इश्यू हो रहा होगा, पहले वो कहेगा कि उससे सॉलिड नहीं खाए जा रहे, और बाद में अगर लेट स्टेजेस में प्रेजेंट करता है उसको लिक्विड्स भी नहीं उसे इनटेक हो रहे, तो उस पेशेंट को क्या होगा? उसको वेट लॉस होगा। So we basically have two types of esophageal carcinomas, the squamous cell carcinoma and the adenocarcinoma. Squamous cell carcinoma usually involve the upper two-thirds of the esophagus, whereas the adenocarcinoma involve the lower one-third of the esophagus. अब अगर आप इसमें नोट करें कि जो स्मोकिंग और एकलेजिया होते हैं, इनकी वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है और एडेनोकार्सिनोमा के रिस्क भी इंक्रीज हो जाते हैं। बैरेट्स एसोफेगस की वजह से देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ द एडेनोकार्सिनोमा, whereas alcohol, hot liquids, caustic strictures lead to the increased risk of squamous cell carcinoma. So we have covered embryology, anatomy, physiology, histology and pathology of esophagus. अब आपके जो भी कमेंट्स हैं, आई वुड अप्रिशिएट अगर आप वो चैट बॉक्स में टाइप इन कर दें, जो भी आपके रिव्यूज हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। So this is basically a brief overview of our FCPS Part 1 course. We focus on the following specialties: medicine, surgery, radiology, gynae, ENTI and dentistry. Our course for February is starting from 20th October, और ये 3 months का कोर्स होगा। These are the registration details. So this brings us to the end of our webinar. आपके जो भी रिव्यूज हैं, आई वुड अप्रिशिएट अगर आप वो कमेंट्स में टाइप इन कर दें। So thank you very much everyone.